السلام علیکم، علاقائی خبرنامے کے ساتھ میں ہوں ارسلان کھوکر۔ بلیٹن کا آغاز اس دعا کے ساتھ: اللہ اپنی رحمت سے ہمارے لیے مشکلات کے حل کا دروازہ کھولتے، محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ہمیں ہر قسم کی وبا اور آفات سے محفوظ فرما، آمین ثم آمین۔ رشتوں کے زخم رسنے لگے، اپنے ہی مرہم رکھنے کی بجائے زخم کریدنے لگے۔ میرے باپ پر مقدمہ کیوں درج کروایا؟ شوہر کا بیوی پر بے ایمانہ تشدد۔ اڈا پٹھان چوک کے رہائشی غلام عباس، اپنے باپ سے جائیداد کا جھگڑا تھا، جائیداد میں حصہ کیوں مانگا؟ دادا نے 8 ماہ کی بچی کو چھت سے نیچے پھینک دیا۔ ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے چودھری ساجد علی موجود ہیں۔ بتائیے گا ساجد، کیا معاملہ ہے یہ؟ جی بالکل افغان، یہ چوک سروس شیخ کا مالی علاقہ ہے۔ اڈا پٹھان اور 611 ہے وہاں پر غلام عباس کی معافی جو ہے وہ اس کا جو ہے زمینی جو ہے رقبے کا تنازع جو ہے وہ کر رہا تھا، کچھ کی بانٹ کا مسئلہ تھا۔ اس کے اوپر جو ہے منیر احمد جو ہے وہ کافی رنگ جو دکھائی دے رہا، غصہ تھا۔ اس نے جو ہے اپنے غلام عباس کی جو 3 ماہ کی بچی تھی اسے جو ہے زمین پر پٹکا، جس کی وجہ سے بچی 3 ماہ کی موقع پہ جو وہ جان بحق ہو گئی ہے۔ اس کو جو ہے اس کی ناش کو تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال سناوا جو ہے منتقل کیا گیا، جہاں کے تھانہ سناوا جو پولیس ہے پر وقت کارروائی کرتے ہوئے جو ہے اس کے اوپر جو ہے دادا ہے بچی کا، اس کی جو والدہ میں دادا کے خلاف جو مقدمہ جو ہے وہ درج کر دیا تھا، جس کے اوپر بچی کی جو والدہ شمیم بی بی وہ اپنے میکے جو ہے چوک سرور شیخ میں چک نمبر 572 میں جو آ گئی تھی، اس کے اوپر جو ہے اس وقت جو شمیم بی بی ہے وہ تشویشناک حالت میں جو ہے سرور شیخ اسپتال میں جو ہے وہ زیر علاج ہے۔ پولیس جو ہے وہ بھی موقع پر پہنچ چکی ہے۔ پولیس نے جو ہے ڈاکٹر میڈیکل جو بنا کر دیا ہے، علاج معالجہ جاری ہے۔ جیسے ہی میڈیکل دیا جائے گا پولیس جو وہ کارروائی کر لے گی، مگر ملزمان ہے وہ با اثر ابھی تک جو ان کے خلاف کوئی بھی کارروائی جو ہے وہ نہیں کی گئی تھانہ سرور شیخ پولیس نے۔ اس کے علاوہ تھانہ سناوا میں جو مقدمہ درج کیا گیا دادا کے اوپر، تھانہ سناوا جو پولیس ہے 8 سے 9 روز گزر چکے ہیں، وہ بھی ملزم کو جو کرنے میں مکمل جو ہے ناکام دکھائی دے رہی ہے۔ اس ٹائم جو ہے تحصیل کوتبی کی دونوں تھانوں کی جو پولیس ہے وہ متاثرہ خاتون کو جو ہے تحفظ دینے میں اور ان کی جو انصاف دلانے میں کوئی بھی کسی قسم کی جو ہے وہ نہیں کر رہا ہے پیش رفت۔ ساجد، یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو بچی کی والدہ ہے جس پر چھری سے حملہ کیا گیا، اس کی کیا حالت ہے؟ کیا وہ بیان دینے کی حالت میں موجود ہے اس وقت؟ ارسلان دیکھیں، وہ جو متاثرہ خاتون ہے انتہائی تشویشناک حالت میں جو ہے اسے چوک سروس اسپتال جو ہے منتقل کیا گیا تھا، بہت زیادہ بلیڈنگ کی گئی۔ اس کے علاوہ تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال میں جو ہے لیڈی ڈاکٹر جو ہے وہ بھی موجود نہیں تھی، جس کے بعد جو 2 سے 3 گھنٹے جو ہے وہ تڑپتی رہی ہے۔ اس کے بعد جو آن کال جو لیڈی ڈاکٹر کو جو ہے بلایا گیا ہے، اس لیڈی ڈاکٹر کو اس کا جو چیک اپ کیا، ابھی تک جو میڈیکل جو ہے وہ نہیں پہنچ سکا۔ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ جیسے ہی ہمیں میڈیکل بنے گا تو ہم جو ہے مقدمہ جو ہے وہ درج کر دیں گے۔ پولیس جو ہے لہت و لال کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ تو متاثرہ خاتون ہے وہ اس وقت جو ابھی تک بیان دینے کے قابل جو ہے وہ نہیں ہے، بے ہوش ہے۔ اس کا علاج معالجہ جو ہے سرور شیخ اسپتال میں جو کیا جا رہا ہے۔ جی ساجد، یہ بتائیے گا غلام عباس مفرور ہے یا وہیں پر موجود ہے؟ تو غلام عباس جو ہے وہ اس وقت مفرور ہے، کیونکہ ان کا جو علاقہ ہے انہیں تھانہ سناوا پولیس جو ہے اڈا پٹھان ہوٹل ہے وہاں پر وہ رہائشی ہیں، کیونکہ یہ خاتون جو تھی جب اس نے مقدمہ درج کروایا تو یہ وہاں سے ناراض ہو کر جو غم و غصہ تھا، اس کی 3 ماہ کی معصوم بچی تھی جس کو جو ہے اس کے سسر نے جو ہے اسے قتل کیا تھا، وہ اپنے میکے یہاں سرور شہید میں جو ہے وہ آ چکی تھی۔ اب جو خامن جو ہے اس کا وہ یہاں پر آ کر جو ہے اس نے اس کے اوپر تشدد کیا ہے، چھریوں کے وار کیے ہیں، مگر تاحال جو ہے وہ دور ہے۔ مگر پولیس جو ہے بالکل بھی کوئی کارروائی کرتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہی، نہ وہ سسر کو پکڑنے میں ابھی تک کوئی کارروائی کی ہے پولیس نے، نہ اس نے جو ہے اس خاتون شمیم بی بی کا جو شوہر ہے اس کو پکڑنے کے لیے کوئی پولیس اقدامات کر رہی ہے۔ صرف پولیس جو ہے بالکل انتہائی سست روی کا مظاہرہ جو وہ ابھی تک جو ہے وہ کر رہی ہے۔ جی ساجد، یہ بتائیے گا جو بچی کے دادا ہے منیر احمد ارائیں، آپ نے بتایا کہ اس پر بھی کوئی کارروائی نہیں ہوئی، پھر ایک دوسرا سانحہ پیش آیا جو کہ غلام عباس نے اپنی بیوی پر چھریوں کے وار کر دیے، اس پر کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ آپ کی پولیس حکام سے کوئی بات ہوئی؟ پولیس حکام سے کوئی رابطہ کرنے کی کوشش کی آپ نے؟ جی بالکل، میری ابھی جو ہے پولیس حکام سے جو ہے وہ بات ہوئی ہے۔ پولیس حکام کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے 20 تاریخ کو جو ہے منیر احمد جو ہے اس کے خلاف جو ہے مقدمہ درج کر دیا ہے۔ تھانہ سناوا میں جو ہے 302 کی دفعات جو ہے وہ لگائی گئی ہیں۔ 20/5/2020 کو جو ہے مقدمہ درج کیا گیا تھا، وہاں پر مقدمہ تو درج ہو چکا تھا 20 تاریخ کو، مگر ابھی تک جو ہے 7 سے 8 روز گزر چکے ہیں، مگر پولیس کسی بھی اس کے سسر کو یا کسی بھی ملزم جو اس میں ملوث تھے کوئی بھی تفتیش نہیں کر سکی، کوئی بھی ملزم جو وہ تاحال گرفتار نہیں کر سکی۔ پولیس حکام کا یہ کہنا ہے ہم نے مقدمہ درج کر دیا، صرف مقدمہ درج کرنے تک کی حد تک جو ہے وہ پولیس اس میں ملوث ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اب یہاں چوک سرور شہر میں جو وقوع ہوا ہے اس میں جو پولیس ہے
जैसे उनको इतला मिली है पुलिस मौके पर पहुंची है, पुलिस ने उन्हें जो है डॉक्टर जो बना के दिया है, मेडिकल जो कहा गया अस्पताल में जाए, आपका आज मुआवजा भी करते हैं और जो हमें वहां पर जो मेडिकल मिलेगा हम उसके ऊपर जो कार्रवाई करेंगे। अब वो वहां पर खतून का इलाज मुआवजा जारी है, मेडिकल उसे मिल चुका है। जब इस सवाल से हमारी थाना सरवर क्षेत्र के SHO से बात की, SHO ने किसी किस्म का कोई मौकफ जो है वो नहीं दिया। उसके बाद जब हमारी PRO जो है तो जिला मुजफ्फरगढ़ के वसीम गुपांग हमारी उनसे बात हुई, उनका ये कहना था हम जो है बिल्कुल बहुत जल्द जो है कार्रवाई अमल में जो है वो ला रहे हैं। उनकी जो यकीन दहानी करवाई जा रही है कि हम जो है जैसे जो है खबरें नशर हो रही हैं, अब जो है पुलिस कुछ हरकत में आ रही है, मगर ताहाल थाना सरवर शहीद में जो शमीन दीदी का जो शोर है उसने किया, उसके खिलाफ कोई भी मुकदमा जो अभी तक दर्ज वो नहीं हो सका अभी तक। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साजिद, तमाम तफसीलात से आगाह कर रहे थे। कैरोड़ पक्का के कई इलाकों में टिड्डी दल ने फसलों पर हमला कर दिया। कपास, मकई और मूंगी की फसलें तबाह हो गईं। किसान सर पकड़कर बैठ गए। फखरुज़्ज़मान रिपोर्ट कर रहे हैं। कैरोड़ पक्का के इलाकों में एक बार फिर टिड्डी दल का हमला। टिड्डी दल के हमले से फसलें मुकम्मल तबाह हो गई हैं। दुनियापुर की तरफ से आए लाखों की तादाद में टिड्डी दल लश्कर ने मिनटों में फसलों को चिट कर दिया। टिड्डी दल के हमले से इस दफा मौजा, मोहम्मद सही, रशीद वार, न्यू रिंदा के इलाके शदीद मुतासर हुए हैं। वाज़ेह रहे चंद रोज कबल टिड्डी दल लश्कर के हमले से कैरोड़ पक्का के इलाके नूरशाह, गिलानी, लाल भमार, चौकी, मस्ती खां, मंगनी, मुहाने वाला और दीगर इलाकों में छोटी फसलें शदीद मुतासर हो चुकी हैं और फसल कपास और फसल मूंगी जड़ से खत्म हो चुकी है, जिस वजह से किसान शदीद परेशान दिखाई दे रहे हैं। और उन्होंने हुकूमत पंजाब से मुतालबा किया है कि कैरोड़ पक्का को आफतज़दा करार देकर किसानों के लिए फौरी इमदादी पैकेज जारी किया जाए ताकि अगली फसल बेहतर तरीके से काश्त की जा सके। कैमरा टीम के हमरा रो फखरुज़्ज़मान, नुमाइंदा सच न्यूज, कैरोड़ पक्का। टंडोवाला यार में टिड्डी दल ने तबाही मचा दी। सिंध के दीगर अजला के बाद टिड्डी दल ने टंडोवाला यार का रुख कर लिया है। तहसील झंडोमरी में फसलों के साथ साथ हरे भरे आम के बागात तक को नुकसान पहुंचाया। इम्तियाज हुसैन रिपोर्ट कर रहे हैं। टंडोला यार में टिड्डी दिल ने तबाही मचा दी। सिंध के दीगर अजला के बाद टिड्डी दिल ने टंडोलियार का रुख कर लिया। लाखों की तादाद में उड़ती हुई टिड्डियां टंडोलियार की तहसील झंडोमरी में पहुंची, फसलों के साथ साथ हरे भरे आम के बागात और दीगर दरख्तों को भी नुकसान पहुंचाया। फसलों की तबाही पर काश्तकार शदीद परेशानी में मुब्तला हो गए हैं। काश्तकारों और किसानों की जानिब से टिड्डी दिल को भगाने के लिए प्लास्टिक के झंडे गाड़कर ढोल भी बजाया गया, लेकिन ढोल की आवाज पर भी टिड्डी दिल ने जाने का नाम नहीं लिया। और काश्तकार अपने फसलों को तबाह होते देखते रह गए। टंडोलियार में वक्तन ब वक्तन टिड्डी दिल के हमले जारी हैं, लेकिन जिले इंतजामिया समेत मुतलका इदारों के अफसरान के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। काश्तकार इस नुकसान के बायस किसानों को अच्छे से मुआवजा भी नहीं फराहम कर सकते। इसके अलावा काश्तकारों के कर्जों में भी इजाफा होता जा रहा है। टंडोलियार के काश्तकारों ने हुकूमत सिंध से मुतालबा किया है कि टिड्डी दिल के खात्मे के लिए स्प्रे किया जाए और हमारे इलाकों को आफतज़दा करार देकर कर्जे माफ किए जाएं ताकि हम फिर से अपने फसलों को आबाद कर सकें। इम्तियाज हुसैन, सच टीवी न्यूज, टंडोलायार। लोधरा के इलाके में टिड्डी दल ने फसलों पर तीसरा हमला किया। हजारों एकड़ पर काश्त फसलें मुतासिर हो गईं। महकमा ज़राअत के अफसरान अपने दफातर तक ही महदूद हैं। काजिम अब्बास रिपोर्ट करेंगे। जिला लोधरा की तीनों तहसीलों लोधरा, दुनियापुर और तहसील कैरोड़ पक्का के मुख्तलिफ इजाफात में टिड्डी दल ने तीसरा हमला कर दिया। टिड्डी दल के हमले से हजारों एकड़ पर काश्त, कपास, मक्की, चारे समेत किसानों की दीगर फसलें बुरी तरह मुतासिर हुई, जैसे किसानों का करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। मुतासा इलाकों के किसान अपनी मदद आप के तहत बर्तनों से शोर करके टिड्डी दल को भगाने की कोशिश करते रहे। किसान भाइयों का कहना है कि महकमा ज़राअत के अफसरान अपने दफातर तक महदूद हैं और एयर कंडीशनर की ठंडी हवाओं के मजे लेते हुए मुफ्त में तनख्वाहें वसूल कर रहे हैं। महकमा ज़राअत की जानिब से टिड्डी दल के खात्मे के लिए कोई इक़दाम नहीं किए गए। मुतासा इलाकों के किसानों ने वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार, वजीर ज़राअत पंजाब मलक नुमान लंगड़ियाल व दीगर हकाम आला से टिड्डी दल के खात्मे के लिए फौरी इक़दाम करने और होने वाले नुकसानात का अजाला करने के लिए माली इमदाद देने की भी अपील की है। कैमरा टीम के साथ डॉक्टर काज़म अब्बास बलोच, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज, लोधरा। रहीम यार खान के इलाके मियांवाली, कुरैशियां और गिरदोनवा में टिड्डी दल ने हमला कर दिया। कमात, कपास, जवार और मकई की फसलें चट कर गई। राशिद रफीक की रिपोर्ट। पाकिस्तान समेत दुनिया के 26 ममालिक में दरपेश है। पिछले बरस सऊदी अरब, यमन में बारिशों की वजह से ईरान के रास्ते ये कीड़ा पाकिस्तान में दाखिल हुआ।
पाक आर्मी, महकमा ज़राअत पंजाब और जिली इंतजामिया पर मुश्तमिल टीमों के तहत मुश्तरका कंट्रोल ऑपरेशन की वजह से टिड्डी दल के हमले ने पंजाब की फसलों को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन इस साल पिछले साल की निस्बत पंजाब के 8 अजला में टिड्डी दल की शदीद लपेट में है, जिसमें जिला रहीम यार खां एक है। कल रहीम यार खां और इसके गिरदोनवा इलाके मियां वली कुरैशियां, सरदारगढ़, शेखवां, रुकनपुर टिड्डी दल का शदीद हमला हुआ, जिससे इन इलाकों में मौजूद आम की फसल, कमाद की फसल, कपास की फसल और जानवरों के चारे, जंतर, ज्वार और मकई को शदीद नुकसान पहुंचा। किसानों का कहना है कि हुकूमत वक्त को टिड्डी दल के हमले के बारे में मुतलका महकमों ने आगाह कर दिया था, लेकिन हुकूमत ने इसके तदारुक के लिए कोई खातिर ख्वाह इंतजाम नहीं किए। किसानों का मजीद ये भी कहना था कि अब मौजूदा हालत में हेलीकॉप्टर के जरिए से स्प्रे करवाया जाए ताकि इसको कंट्रोल में लाया जाए और मजीद नुकसान से बचा जाए। और जब सच न्यूज की टीम महकमा ज़राअत पंजाब से मौक़िफ़ लिया तो उन्होंने कहा कि हुकूमत पंजाब ने स्प्रे मशीनरी और जहर हंगामी बुनियादों पर खरीद कर फील्ड में फराहम कर दी हैं और महकमा ज़राअत पंजाब के 3000 से ज्यादा वर्कर और 328 गाड़ियां टिड्डी दल के खात्मे की मुहिम में हिस्सा ले रही हैं और जरूरत के मुताबिक हेलीकॉप्टर के जरिए स्प्रे भी किया जा रहा है और ये ऑपरेशन टिड्डी दल के खत्म होने तक जारी रहेगा। मजीद इनका कहना था कि जिन इलाकों में टिड्डी दल का हमला हो वो इलाके महकमा ज़राअत पंजाब या मकामी इंतजामिया को आगाह करें ताकि इसके तदारक के लिए ठोस इंतजाम किए जा सकें। पंजाब के कई इलाकों में टिड्डी दल की यलगार ने किसानों की मुश्किलात बढ़ा दी हैं। राजनपुर, जामपुर और रुझान में सूरजमुखी और आम के बागात तक मुतासिर हो गए हैं। टिड्डी दल ने राजनपुर में डेरे लगा दिए, शहरी इलाकों में भी दाखिल हो गई। टिड्डी दल की एक बार फिर इलाकों की तादाद से शिद्दत फसलों पर जलकार। रुझान, शाहवाली, उमरकोट, फाजलपुर, कोटला नसीर, मोहम्मदपुर, ओमवाला मौजा, जहांपुर, पचाद के इलाकों में टिड्डी दल के फसलों पर शदीद हमले जारी हैं। जामपुर के मुख्तलिफ इलाकों में भी टिड्डियों के फसलों पर हमले जारी हैं। टिड्डियों के हमलों से कपास की काश्त फसल को नुकसान। टिड्डी दल ने नुकसान किया, हमारा काश्तकारी हम करते थे घास को और मूंगी और फूटी को नुकसान किया है। इसकी वजह से हमारा रिक्वेस्ट है वजीर आला पंजाब से कि वो नोटिस ले। टिड्डी दल ने हमारे फसलें तबाह कर दी हैं, हमारा भैंसों का गाय का ये चारा हमारा भी खत्म कर दिया है, मूंगी कपास को तबाह कर दिया है। हम बहुत परेशान हैं। यहाँ हमारा अपील है हुकूमत से, इनके लिए कोई मसला है, हमारे लिए मसला है, इसको हल करें। टिड्डियों के हमलों से मूंग, जंतर, जवार, टमाटर, सूरजमुखी, सब्जियों और आम के बागात को शदीद नुकसान का खतरा। किसान अपनी मदद आप के तहत टिड्डियों को भगाने में मसरूफ है। जिले इंतजामिया की जानिब से की जाने वाली स्प्रे भी टिड्डियों को खत्म न कर सकी। बिहाड़ी के इलाका जात साहूका और महर बलोच समेत दीगर इलाकों में सैलाब ने तबाही मचा दी। सैकड़ों एकड़ रकबे पर काश्त फसलें और रिहायशी आबादी जेर आब आ गई। जिले इंतजामिया ताहाल मुतासिरा इलाकों में किसी किस्म के इकदाम नहीं उठा सकी है। सैयद हसनैन अली हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा हसनैन, इस वक्त अहले इलाका क्या कहते हैं? बिहाड़ी के इलाका जात साहूका और महर बलोच समेत दीगर इलाकों में सैलाब ने तबाही मचा दी। सैकड़ों एकड़ पर रकबे पर काश्त फसलें और रिहायशी आबादी जेर आब आ गई। जिले इंतजामिया अब तक मुतासिरा इलाकों में किसी भी किस्म के इकदाम नहीं उठा सकी। अहले इलाका ने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। सैयद हसनैन हमारे साथ मौजूद है। बताइएगा सैयद हसनैन। रमजान के बाद ईद भी गई, लेकिन महंगाई का तूफान न थम सका। ताजरों ने लॉकडाउन में फंसे शहरियों को लूटने का नया रिकॉर्ड बना डाला। तमाम अशिया खुरनोश की कीमतों में 10 से 100% तक मसनूई मुनाफा वसूल किया जा रहा है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। होश ठिकाने लगा दिए। मुंहजोर ताजिरों ने अवाम की खाल उतारने के लिए नए नए तरीके तलाश कर लिए। पहले लॉकडाउन, फिर रमजान और फिर ईद। ताजिरों ने महंगाई करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दिया। आटा, चीनी, घी, चावल, दूध, दालें, सब्जियां और गोश्त के साथ साथ मौजूदा दौर में बिजली, गैस, पेट्रोल और अद्वियात में भी मनचाहा इजाफा करके शहरियों को बेहाल किया गया। लेकिन मजाल है किसी इदारे ने इसकी कोई खबर भी ली हो। हुकूमत कोरोना तो दूर अभी तक महंगाई पर भी काबू नहीं पा सकी। गरीब शहरी दोहरी अजियत में मुब्तला हो गए हैं, लेकिन कोई उनकी फरियाद सुनने को तैयार नहीं। शहरियों ने सवाल किए कि क्या कमेटियां ही बनती रहेंगी? कब गिरा फरोशों को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा? कब आटा, चीनी, दालें सस्ती होंगी? कब अवामी हुकूमत अवाम की फिक्र करेगी? तमाम इदारे, तमाम अफसरान ख्वाब गफलत से कब उठेंगे?
कब आवाम को इंसाफ मिलेगा? कब आवाम कमर तोड़ महंगाई से निजात पा सकेंगे? सच ही कहते हैं गुर्बत और महंगाई का चोली दामन का साथ है और पाकिस्तान इस कहावत की बेहतरीन मिसाल बना हुआ है। महंगाई कम ना होने से गुर्बत में तेजी से इजाफा हो रहा है और आम शहरी 2 वक्त की रोटी को भी तरस गए हैं। मुल्क भर में महंगाई का तूफान बरपा है। सब्सिडी के बावजूद गरीब आदमी आज भी महंगी चीनी और महंगी रोटी खरीदने पर मजबूर है। लिया से शाहिद खरल रिपोर्ट कर रहे हैं। हुकूमत ने शुगर स्कैंडल के मुजरिमों को बेनकाब तो कर दिया है, लेकिन उन पर हाथ डालने से कासे नजर आती है। शुगर स्कैंडल मंजर आम आने के बावजूद शहरी अब भी महंगे दामों चीनी खरीदने पर मजबूर हैं। तो दूसरी तरफ आटा सब्सिडी तो दे देगी, लेकिन इसके बावजूद कम वजन और महंगी रोटी गरीब का मुकद्दर है। इस महंगाई से हर तबका फिक्र परेशान नजर आता है। इस हवाले से लोगों का कहना है, चीनी स्कैंडल के मुजरिम को तो बेनकाब कर दिया है, लेकिन चीनी आज भी हम महंगे दामों खरीद रहे हैं। रोटी तो सस्ती हो गई है, लेकिन रोटी सस्ती होने के साथ साथ रोटी का वजन भी कम हो गया। गरीब आदमी को एक की बजाय 2 रोटियां लेनी पड़ती हैं। हुकूमत को इसके ऊपर अमल दरामद करना होगा। चीनी स्कैंडल दे मुजरिम ते बेनकाब हो गए, लेकिन चीनी असी हुण भी महंगे दामों खरीद रहे हैं। इसी तरह गवर्नमेंट ने आटा ते सस्ता कर दिता, रोटी भी सस्ती हुई, लेकिन रोटी का वजन कम हो गया। अगर हुकूमत ने कोई अमली कदम ना उठाया तो गरीब शख्स कोरोना वायरस से तो नहीं, अलबत्ता भूख की वजह से मर सकता है। कैमरामैन कामरान शाहिद के साथ शाहिद इकबाल खरल, सच न्यूज, पीर जग्गी, पहाड़पुर, लिया। महंगाई का सुनामी सब बहा कर ले गया। साहिवाल में मुर्गी के गोश्त की कीमत पर इख्तलाफ शिद्दत इख्तियार कर गया। ब्रायलर एसोसिएशन ने हड़ताल का ही ऐलान कर दिया है। बाबर सिद्दीकी रिपोर्ट कर रहे हैं। हुकूमती नाक़िस हिकमत अमली के सबब पेट्रोल का बहरान सर उठाने लगा। शहरियों को एक के बाद एक परेशानी का सामना है। ज़हूर दुरानी की रिपोर्ट देखिए। हुकूमती कमजोर गिरफ्त और नाक़िस हिकमत अमली का फायदा जहां माफिया उठाता है, वहीं इसके नतायज अवाम को भुगतने पड़ते हैं। मौजूदा हुकूमत की सूरत हाल ही कुछ ऐसी है। गंदम, चीनी समेत अशियाए खुर्द-व-नौश के महंगा होने के बाद कोरोना के दौरान हुकूमत की नाक़िस हिकमत अमली के सबब डीजल की तरसील और खपत में तवाज़ुन न होने पर माफिया ने जहां महंगे दामों बेचते हुए शहरियों का खून चूसा, अब पेट्रोल का बहरान सर उठाने लगा है। मगर हुकूमत की वही पुरानी रट कि मुल्क में एल की कमी नहीं, ज़खायर में एल मौजूद है, मगर हकायक इसके बिल्कुल बरअक्स हैं। प्राइवेट कंपनियों पर बाहर से एल मंगवाने पर पाबंदी के बाद सूरत हाल बिगड़ी, जो कि अभी तक नहीं संभल रही। लिया और गिरदो नवा में पेट्रोल की किल्लत पैदा होती जा रही है, जिसके बायस कई पेट्रोल पंप पर पेट्रोल दस्तयाब नहीं, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। साहिब इक़्तिदार तबका की आंखें तब तक नहीं खुलती जब तक कोई बड़ा बहरान जन्म न ले। कैमरामैन जुबैर लश्करानी के साथ ज़हूर दुरानी, सच न्यूज, लिया। लिया के इलाके चौक आजम में कायम वाहिद पार्क उजड़ गया। फंड्स की अदम दस्तियाबी और इंतजामिया की गफलत के सबब पार्क खंडरात का मंजर पेश कर रहा है, पर कोई पुरसान हाल नहीं। जाहिद हुसैन रिपोर्ट करेंगे। किसी भी सेहतमंद माशरे को परवान चढ़ाने के लिए सेहत अफजा मकाम इस माशरे के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल होते हैं। लिया के दिल चौक आजम में महकमा जंगलात की तरफ से दिए गए 107 एकड़ रकबा पर फास्ट पार्क बनाया गया, जो 67,000 नफूस पर शहर चौक आजम के लोगों के लिए एक नेमत से कम नहीं है। लेकिन फंड्स अमला की अदम दस्तियाबी और सहूलियात की कमी की वजह से ये पार्क उजड़ने लगा और किसी मसीहा का मुंतजिर है जो इसकी मुरम्मत करा सके। पार्क के गिर्द म्युनिसिपल कमेटी की तरफ से फेंका जाने वाला कचरा और इर्द गिर्द खड़ा गंदा पानी इस मकाम को सेहत अफजाज बनाने की बजाय बीमारियों की अमाजगाह बना रहा है। पार्क में आवारा कुत्तों ने घूमना मामूल बना लिया है, जो किसी भी वक्त बड़े साने का सबब बन सकता है। बिजली का बिल अदा न होने की वजह से बाफ्टा ने गुज़िश्ता 2 माह से मीटर काट लिया। ग्रास कटिंग मशीन खराब और दीगर अवाम की सहूलियात का सामान टूट फूट का शिकार होने लगा है। पार्क में लगाए गए पौधों को पानी न मिलने की वजह से सूखने के खदशात बढ़ गए हैं। पार्क सुपरवाइजर ने शिकायत के अंबार लगा दिए। पानी की छोटी मोटर है जो 1 क्यूसेक पानी देती है और ग्रासी लान को ही बहुत मुश्किल शराब करती है। दूसरा मसला है, 1 साल से मैं बार बार गुजारिश कर रहा हूँ, बिजली के बिल का अक्सर मीटर कट जाता है, जिसकी वजह से पौधों के सूखने का अंदेशा होता है। तीसरा मसला है कि हमें आज तक स्टाफ नहीं दिया गया, जिसमें माली भर्ती करने थे, चौकीदार थे और स्वीपर थे, तो आज तक वो भर्ती नहीं किया गया। फंड्स बहुत कम हैं, तो इनको मैनेज करना इन फंड्स में बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं और मेरा फॉरेस्ट गार्ड दिन रात की मेहनत से इसे कोशिश करके सरसब्ज़ो शादाब और खूबसूरत तो बनाए हुए हैं, लेकिन अब फंड्स की कमी और इन मसाइल की वजह से हम बेबस हो रहे हैं। तो मैं गुजारिश करूंगा कि मेरे ये मसाइल दूर किए जाएं। कैमरामैन जामिर रजा मलकानी के साथ जैद हुसैन मलकानी, नुमाइंदा सच न्यूज, चौक आजम। लॉकडाउन के बायस आवाम की सैर व तफरीह के लिए बनाए गए ग्राउंड्स और पार्क्स आवाम के लिए बंद हैं, लेकिन जानवरों के लिए खोल दिए गए हैं। विहाड़ी से हसनैन अली रिपोर्ट करेंगे।
हुकूमती अहकामात के मुताबिक 2 माह से आवाम की सैर तफरीह के लिए बनाए गए पार्क्स और ग्राउंड को बंद कर दिया गया है। इस सिलसिला में SOPs के मुताबिक मुख्तलिफ औकात में नरमी करते हुए कारोबारी मराकज और दफातर खोलने की इजाजत दे दी गई, लेकिन आवाम की सैर तफरीह के और खेलने के लिए बनाए गए पार्क्स और ग्राउंड अभी तक बंद है, जिसमें बेंच और गधों ने डेरे डाल लिए हैं, जिससे पार्क्स और ग्राउंड उजड़ रहे हैं और इनकी हिफाजत कोई खातिर इंतजाम नहीं किए। जिला इंतजामिया खामोशी तमाशाई बनी हुई है, जिसके बायस आवाम और खिलाड़ी परेशानी में मुब्तला होकर डिप्रेशन के मरीज बनते जा रहे हैं। शहरियों का कहना है कि दफातर और कारोबारी मराकज की तरह हुकूमती SOPs के मुताबिक आवाम की सहूलत के लिए बनाए गए इन पार्क्स और ग्राउंड्स को भी खोला जाए। कैमरामैन शफीक भट्टी के साथ सैयद हसनैन अली, सच न्यूज, बिहाड़ी। सांगड़ में इंतजामिया की गफलत और लापरवाही, करोड़ों की लागत से बना पार्क 6 बार इफ्तिताह करने के बावजूद भी फाल न हो सका। शहरी सस्ती तफरीह से महरूम है। अशफाक सुलहरी रिपोर्ट करेंगे। सांगड़ जो कि तेल के साथ साथ ज़राअत की दौलत से भी माला माल है। ज़िली इंतजामिया की जानिब से एक ही पार्क का 6 बार यहाँ पर इफ्तिताह होने के बावजूद भी जहाँ पर गैर फाल पार्क अभी तो मौजूद है। एक ही पार्क का नाम, कभी सूर्या बादशाह पार्क, कभी पीसा पगारा पार्क, कभी बेनज़ीर पार्क, कभी सिटी पार्क, कभी डिस्ट्रिक्ट पार्क के नाम से इसको इफ्तिताह करने के बावजूद कभी इसका इफ्तिताह जिला चेयरमैन खादिम हुसैन रिंद कर रहे हैं। और यहाँ सिक्योरिटी का इंतजाम रखेंगे। यहाँ पे जो मुलाजिम है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के वो भी यहाँ पे ड्यूटी देंगे और इंशाल्लाह इसको आप देखेंगे। खवातीन के लिए किस दिन आ सकेंगे सही वो भी जो हम इसके दिन मखसूस कर लेंगे, छुट्टी वाले दिन मेरे ख्याल से कि वो छुट्टी वाले दिन बेहतर रहेंगे। जुम्मा और सैटरडे संडे, उसमें बच्चों की छुट्टियाँ भी होती हैं और जो हमारी जाती है लेडीज वो भी आ सकती हैं। लेकिन इसके बाद भी हम लोग बैठेंगे अभी हमारी टीम, तो हम उसमें डिसाइड कर लेंगे। कभी इसका इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर सांगड़ कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी करोड़ों रुपए की लागत से तमीर होने वाला चिल्ड्रन पार्क गैर फाल है। इंतजामिया की जानिब से बेहसी के बायस इस पार्क के अंदर जगह जगह जहाँ पर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, पार्क के अंदर पीने का साफ पानी ना होने की बिना पर यहाँ पर आने वाले बच्चों और खवातीन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। खवातीन के लिए यहाँ पर करोड़ों रुपए की लागत से वॉक ट्रैक बना दिया गया, लेकिन जो कि गैर फाल है। पार्क के अंदर लगाए गए तमाम लाखों रुपए के झूले बेकार हो चुके हैं। ईद और दीगर त्यौहार के मौके पर बड़ी तादाद में खवातीन और बच्चे यहाँ पर आने वाले गैर अपने आप को गैर महफूज समझते हैं, क्योंकि यहाँ पर इंतजामिया की जाने से पीने का साफ पानी, लैट्रिन व दीगर इंतजाम ना होने की बिना पर यहाँ पर आने वाले बच्चे और खवातीन अपने आप को गैर महफूज रखते हैं। इंतजामिया की जानिब से यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजाम नहीं किए गए, सफाई का यहाँ पर कोई इंतजाम नहीं किया गया। फंक्शन लीग के रहनुमा नंद कुमार गोकलानी ने भी यहाँ पर विजिट किया और इस पार्क को फाल करने का वादा किया। जिला चेयरमैन खादिम हुसैन रिंद ने यहाँ पर कई बार इसका इफ्तिताह किया और उस पार्क को फाल करने का वादा किया। म्यूनिसिपल इंतजामिया अपनी ही जिम्मेदारियां भूल बैठी। लालियां के नवाही इलाकाजात में सीवरेज का पानी पीने के पानी में शामिल हो रहा है। शहरी मुश्किलात का शिकार हैं। शकील अब्बास रिपोर्ट करेंगे। लालियों को तहसील तो बना दिया गया, मगर लोगों को सहूलियात ना मुयसर हो सकी। लालियां के इलाके मौजाकोल और शेखन में सेवरेज निज़ाम नकारा हो गया। सेवरेज निज़ाम न होने की वजह से सेवरेज का गंदा पानी घरों के सामने खड़ा होना शुरू हो गया, जिससे मौजाकोल की आबादी का पीने का पानी भी खराब होने लगा और लोग हेपेटाइटिस जैसी मौजी बीमारी में मुब्तला होने लगे। मौजा शेखन और कोल की आबादी के लोगों का मजीद कहना था कि हमने कई बार इंतजामिया के इस मसले के बारे में आगाह किया, मगर इंतजामिया लंबी तान कर सो गई। 2 एकड़ के लगभग रकबा है जिस पर पानी इकट्ठा हुआ है और इस पानी के इकट्ठा होने से इंसानी जानों को तो खतरा ही है, उसके साथ मच्छर पैदा हो रहे हैं। हेपेटाइटिस बी सी जो है वो अपने जो पाकिस्तान में जो उसका एक लेवल है उससे भी बढ़कर हमारे गांव में बहुत ज़्यादा है। साफ़ पानी जो है वो पीने को नहीं मिल रहा। हमारी DCO साहब के तवस्सुत से हमारे अपना वज़ीर आला साहब को और वज़ीर आज़म साहब को ये अपील है कि हमारे लिए पानी का साफ पानी मुहैया किया जाए, यहाँ पर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाया जाए और हमारी सीवरेज का जो सिस्टम है इसको मुकम्मल तौर पर इसको मुकम्मल किया जाए और इस पानी को गांव से बाहर निकाला जाए। लालियां के लोगों को यही कहना था कि यहाँ के सीवरेज निज़ाम को बेहतर किया जाए ताकि यहाँ के पानी खराब ना हो और लोग हेपेटाइटिस जैसी मौजी बीमारी में मुब्तला ना हो। कैमरामैन अब्दुल सुल्तानी के साथ शकील अब्बास, सच न्यूज, लालियां। ऊंच शरीफ में दरगाह शेख सलाहुद्दीन की इमारत का तामीराती काम इल्तबा का शिकार है। ठेकेदार काम अधूरा छोड़कर गायब हो गया, जिसके बाद ज़ायरीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ऊंच शरीफ दरबार हज़रत शेख सलाहुद्दीन अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह पर 1 साल पहले तामीराती काम शुरू तो किया गया, लेकिन
ठेकेदार पिछले 6 महीनों से काम छोड़कर गायब हो चुका है, जिससे दरबार पर आने वाले ज़ायरीन को खासी मुश्किलात रहती हैं। मुल्तानी तर्ज पर दरबार की दीवारों को अंदरूनी व बैरूनी तरफ से नीली रोगनी टाइलों से सजाया गया था, जिसको ठेकेदार निकालकर आम सादा सी टाइलें लगा रहा है, जिससे दरबार की खूबसूरती मान पड़ गई है। महकमा आसार कदीमा और ठेकेदार की मिली भगत से नाकिस मटेरियल का बेतरीक इस्तेमाल होने की वजह से अभी से दरबार की दीवारें खस्ताहाल होने की वजह से दरबार की इमारत तबाही के दिहाने पर पहुंच चुकी है। एल इलाका ने कमिश्नर भावलपुर और डीसीओ भावलपुर से नोटिस लेकर दरबार की तमीर और मुरम्मत में मियारी मटेरियल इस्तेमाल कराने और तरक्याती काम को जल्द अज जल्द मुकम्मल कराने का मुतालबा किया है। कैमरामैन साजिद मलिक के साथ सैयद कामरान आजाद, सच न्यूज, उच्च शरीफ। समंदरी में अब्दुल हकीम मोटरवे पर ट्रैफिक हादसा, तेज रफ्तार कार उलटने से 5 अफराद जाँ बहक हो गए जबकि 3 बच्चे शदीद जख्मी हैं। समंदरी में अब्दुल हकीम मोटरवे पर ट्रैफिक हादसा पेश आया, तेज रफ्तार कार उलटने से 5 अफराद जाँ बहक हुए, 3 बच्चे शदीद जख्मी हैं। मोहम्मद शहबाज हमारे रिपोर्टर मौजूद है। शहबाज बताइएगा। जी बिल्कुल, समंदरी का इलाका थाना मरीदवाला की हदूद में अब्दुल हकीम मोटरवे पर तेज रफ्तार कार उलटने से 5 अफराद जख्मी हो गए हैं। 5 अफराद जो है वो जान की बाजी हार गए हैं जबकि 3 बच्चे शदीद जख्मी हुए हैं। जराये के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया है। कार जो सवार जो है वो मुल्तान से कसूर जा रहे थे। तेज रफ्तार कार का टायर फट गया और बेकाबू होकर उलट गई है, जिसकी वजह से 5 अफराद मौका पर ही जाँ बहक हो गए हैं जबकि 3 बच्चे भी शदीद जख्मी हो गए हैं। मोटरवे पुलिस के मुताबिक हादसे की मजीद तहकीकात जारी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद शहबाज। सिंध हुकूमत और महकमा औकाफ ने लाल शहबाज कलंदर के मज़ार को ज़ायरीन के लिए मुकम्मल SOPs पर अमल दरामद करवाते हुए खोलने की इजाजत दे दी है। शमीर खान रिपोर्ट करेंगे। सिंध हुकूमत की जानिब से सूबे भर में लॉकडाउन और मज़ारात बंद करने के फैसले के बाद वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का हल्का इंतखाबात सेवन शरीफ में भी कई रोज से मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन रहा। शहर का कारोबार मुकम्मल तौर बंद था, जबकि अजीम सूफी बुजुर्ग हस्ती हजरत सैयद उस्मान मरवंदी अल मारूफ हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार भी आम ज़ायरीन के लिए बंद थी। ताहम कलंदर लाल शहबाज की मज़ार पर धमाल का सिलसिला ताहाल जारी है। धमाल में सिर्फ महकमा औकाफ के मुलाजमीन शिरकत करते हैं। धमाल में आम ज़ायरीन को शिरकत की इजाजत नहीं थी। कोरोना वायरस के खतरे के बाद तारीख में पहली मरतबा कलंदर लाल शहबाज रहमतुल्लाह अलैह का 768वां उर्स मुबारक भी इस साल मुनक़द नहीं हो सका। उस मुबारक में पूरे मुल्क से 20 लाख से ज्यादा ज़ायरीन से मनाते हैं और कलंदरी धमाल डालकर मुख्तलिफ तरीकों से लाल शहबाज कलंदर से अपने अकीदत का इजहार करते हैं। सेवन शहर का कारोबार दरबार कलंदर लाल शहबाज पर आने वाले ज़ायरीन पर होता है। दरबार कलंदर बंद होने के बाद दरबार के गिरदो नवाज तमाम शाह के दुकानें मुकम्मल तौर पर बंद हैं, जबकि ज़ायरीन सेवन न आने के बाद शहर के सड़कें वीरानी का मंजर देने लगी हैं। शहर में फूल, चादरें, लंगर खाने समेत दीगर कारोबार करने वाले 3000 से ज्यादा खानदानों का जरिया मुआश दरबार कलंदर लाल शहबाज पर आने वाले ज़ायरीन होते हैं, मगर दरबार कलंदर लाल शहबाज मुकम्मल तौर बंद होने के बाद 3000 खानदानों फाका कशी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर थे। वफाकी हुकूमत की जानिब से मुल्क भर में लॉकडाउन में नरमी के बाद सिंध हुकूमत ने महकमा औकाफ को दरगाह हजरत कलंदर लाल शहबाज रहमतुल्लाह अलैह को आम ज़ायरीन के लिए SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद करते हुए खोलने की इजाजत दी है। कल से दरगाह हजरत कलंदर लाल शहबाज आम ज़ायरीन के लिए खोलने की तैयारी हो रही है। हुकूमती फैसले के बाद शहर में खुशी की लहर दौड़ गई है। ज़ायरीन नहीं है तो हमारी रोजी बिल्कुल नहीं है, ऐसे ही तकरीबन सारा दिन बैठे हुए हैं। बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। अगर खुलेगी तो हमें और भी बहुत खुशी होगी। लाल साईं खुलेगा फिर शहर भी खुल जाएगा तो रौनक बढ़ जाएगी। का नुकसान पड़ा है, लाखों करोड़ों रुपए का। हमारा तो मेला भी खत्म हो गया। हमारे देखो तो बच्चे भी खुदा की कसम हम भूख पाते हैं। हम क्या अपना वसाइल बताएं। वो कपड़े की सिलाई लगी पड़ा है, ज़ाहिर फटे पड़े क्या हम बाजार का सद है, वो फटे हुए कपड़ा पहने करेंगे। वज़ीर आला से ये मुतालबा है कि दरगाह को फिर दोबारा नहीं बंद कर, ये मेहरबानी हो। मुल्तान में मार्केट्स और दुकानें खुलने से दुकानदार बहुत खुश हैं। कुछ दुकानदार हिफाजती SOPs पर अमल दरामद भी करवा रहे हैं। मुल्तान से अहमद काशिफ हमारे साथ मौजूद है। अहमद काशिफ, बताइएगा, कारोबार का पहिया चल पड़ा मुल्तान में?
जी बिल्कुल, मुल्तान में भी मार्केट्स खुल चुकी हैं, दुकानें खुली हुई हैं और वहाँ पर इस वक्त जो है कस्टमर्स आकर और वहाँ से ख़रीदारी करने में भी मसरूफ़ हैं। इसके साथ साथ जो छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं उनके भी जो है वो ईद के बाद तातीलात ख़त्म हुई हो तो उनके खुलने का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ है। मुल्तान में इस वक्त जो है वो मुख्तलिफ मार्केटें खुल चुकी हैं। जो शॉपकीपर्स या आवाम हैं उनसे इस हवाले में राय लेते हैं। सर मुझे बताइएगा, मार्केटें खुल गई हैं, कैसा रुझान जा रहा है? अल्लाह का शुक्र है, पहले से काफ़ी बेहतरी आ चुकी है, मगर यही है कि हुकूमत को चाहिए कि हमारे थोड़ी सी नरमी करें, क्योंकि जो 5-7 बजे तक का टाइम है, क्योंकि हालात कुछ ख़राब हैं, इसलिए उन्हें चाहिए कि थोड़ी सी मेहरबानी करके टाइम बढ़ा दें, 9 बजे तक कर दें। चलें, यह है कि कुछ बेहतरी आ जाएगी और हुकूमत का शुक्रिया है कि उन्होंने लॉकडाउन में नरमी पैदा कर दी है और हम SOPs पे भी कोशिश कर रहे हैं, अमल दरामद है। जी SOPs पर भी इनका कहना है कि अमल दरामद कर रहे हैं। आप मुझे बताएं SOPs पर कितना अमल दरामद किया जा रहा है? बहुत ज़्यादा सख्ती कर रखी है पुलिस वालों ने। 7 बजे का टाइम है, उससे पहले आ जाते हैं कि बंद करो, दुकानें बंद करो। इस वजह से मेहरबानी करके 10 बजे तक टाइम हो करें। सही। यहाँ पे जो शॉपकीपर्स हैं उनका ये मुतालबा है कि पुलिस की जानिब से उन्हें तंग किया जाता है अभी भी कि दुकानें जल्द बंद कर दी जाएं, जबकि 7 बजे तक का वक्त भी होता है। तो इनका मुतालबा ये भी है कि हुकूमत जिसमें नरमी करते हुए दुकानों को मजीद देर तक खोलने रहने की इजाजत दे। बहुत शुक्रिया अहमद काशिफ। लॉकडाउन के बायस होटल मुकम्मल तौर पर बंद हैं। होटल मालिकान और मजदूरों के घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। होटल मालिकान और मजदूरों ने एहतजाजी मुजाहरा करके दादू प्रेस क्लब के बाहर धरना दे दिया। शोएब थईम की रिपोर्ट। कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन के बायस गुज़िश्ता 2 माह से दादू की तमाम होटलें मुकम्मल तौर बंद हैं। सिंध हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन में नरमी के बावजूद होटल मालिकान को कारोबार करने की इजाजत न देने के खिलाफ दादू में होटल मालिकान और मजदूर अफराद सड़कों पर निकल आए। एहतजाजी मुजाहरा करके दादू प्रेस क्लब के बाहर धरना देकर शदीद नारेबाजी की। इस मौके पर होटल मालिकान और मजदूर अफराद का कहना था कि गुज़िश्ता 2 माह से लॉकडाउन के बायस घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। लोग कोरोना वायरस की वजह से नहीं बल्कि भूख की वजह से मर रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में जो है वो सब कारोबार खोल दिए गए हैं। SOP के तहत उस पर अमल हो रहा है। तो सिर्फ एक हमारी होटलें बंद हैं जहाँ पर जो है वो खोलने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। इस मौके पर होटल मालिकान और मजदूर अफराद का मजीद कहना था कि हुकूमत ने SOPs के तहत इंडस्ट्रीज समेत तमाम कारोबार खोलने की इजाजत दे दी है, लेकिन होटलें खोलने की इजाजत नहीं दी जा रही, जिस वजह से हजारों अफराद फाका कशी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए हैं और हुकूमत की जानिब से उन्हें कोई रिलीफ भी नहीं दिया गया। मैं एक दादू में होटल वाला हूं जिसके 250 मजदूर हैं। मेरे 4 होटलें हैं दादू में, लेकिन 2.5 महीने से एक दिन भी हमें ताला खोलने नहीं दिया गया। हमारे जो होटल हैं जो बंद पड़े हुए हैं उनको खोला जाए और आपकी जो SOP है उस पर इंशाल्लाह हम अमल करेंगे। और हमारे जो मजदूर हैं उनको नहीं ईदी मिली, नहीं हम दे सके, नहीं गवर्नमेंट दे सकी। हम कहाँ से खाएंगे? हम मजबूर होकर रोड पे निकले हैं। अगर ये हमारी ये नहीं सुनेंगे तो हम अपने बच्चे, बाल बच्चे, बीबी बच्चे जो भी हम रोड पे निकाल के ले आएंगे इधर। होटल मालिकान और मजदूर अफराद ने हुकूमत से मुतालबा करते हुए कहा कि SOPs के तहत उन्हें कारोबार करने की इजाजत देकर उनसे बेचैनी दूर की जाए, बसूरत दीगर एहतजाज का दायरा वसी कर दिया जाएगा। शोएब थईम, सच TV, दादू। आजाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में लॉकडाउन में दोबारा सख्ती कर दी गई, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट और दीगर कारोबार बंद हैं। अवाम की मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। नदीम शाह रिपोर्ट करेंगे। ईद के बाद लॉकडाउन में हुकूमत की तरफ से की जाने वाली सख्ती के बाद मुजफ्फराबाद की सड़कों पर वीरानी देखने में आ रही है। लॉकडाउन में अशियाए खुर्दोनोश, मेडिकल स्टोर्स के अलावा तमाम कारोबारी मराकज बंद हैं, जिसकी वजह से आम आवाम के लिए मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। दारुल हुकूमत में कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस की वजह से हुकूमत ने लॉकडाउन में सख्ती का फैसला किया है। ईद के दिनों में अवाम अपनी ईद की तफरीह के लिए सियाहती मकामात का रुख करते हैं, लेकिन इस ईद पर लॉकडाउन की वजह से अवाम अपने घरों में महदूद हैं। देखें जी, जब तक आज़ाद कश्मीर में लॉकडाउन था तब तक कोरोना के केसेस बहुत ही कम थे। जैसे ही इसको थोड़ा सा नरम किया गया, उसका नतीजा आपके सामने है कि यहाँ पर एक केस भी नहीं था और अभी देखें 70 से ऊपर केसेस खाली मुजफ्फराबाद में। तो जब लोग अगर घर में रहेंगे तो महफूज रहेंगे, घरों से बाहर निकलेंगे तो मज़ीद कोरोना फैलने के चांसेस हैं। मैं देखें जी, सफ़ेद पोश तबका और मजदूर तबका जो है ये मुश्किलात में है, लेकिन देखने में जो आ रहा है ये ज़रूरी है कि मज़ीद जो है लॉकडाउन को सख्त किया जाए और इसमें नरमी बिल्कुल न बरती जाए। जो नरमी की गई है उसकी वजह से इस वक्त मुजफ्फराबाद में 70 से 80 केस मज़ीद आ गए हैं। हमारा यही हुकूमत से मुतालबा है कि इसको मज़ीद सख्त किया जाए जब तक ये वबा ख़त्म नहीं हो जाए। हुकूमत आज़ाद कश्मीर के मुताबिक रमजान मुबारक में लॉकडाउन में नरमी के बाद दोबारा लॉकडाउन में सख्ती का फैसला अवाम के वसीतर मुफाद में किया गया। ईद के बाद लॉकडाउन में दोबारा सख्ती,
عوام کے لیے باعث تکلیف ضرور ہے، لیکن حکومت کی طرف سے کرونا وائرس ایمرجنسی کا لاک ڈاؤن دوبارہ نافذ کرنے میں عوام کی ہی بہتری ہے۔ کیمرامین سکندر شاہ کے ساتھ سید ندیم شاہ، سچ نیوز، مظفر آباد، آزاد کشمیر۔ حیدرآباد میں سورج آگ برسا رہا ہے۔ تپش اور گرمی کی وجہ سے لوگ پریشان حال دکھائی دے رہے ہیں۔ جہاں زیب علی تفصیلات بتائیں گے۔ سندھ کے دوسرے بڑے شہر حیدرآباد میں سورج نے آنکھیں دکھانا شروع کر دی ہیں، جس کی وجہ سے تپش اور گرمی کی وجہ سے لوگ پریشان حال دکھائی دے رہے ہیں، جبکہ انسانوں کے ساتھ ساتھ جانور و پرندے بھی گرمی و تپش سے بچنے کے لیے درخت کے سائے اور پانی کی طرف بیٹھ جاتے ہیں۔ لوگ گرمی اور سورج کی تپش سے بچنے کے لیے ٹھنڈی مشروبات کا زیادہ استعمال کرتے ہیں اور دوسری طرف لوگ درخت کے نیچے بیٹھ کر گرمی سے بچتے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ موجودہ گرمی کی شدت سے حکومت کی جانب سے کسی بھی قسم کا بندوبست، ٹھنڈے پانی کا انتظام کہیں بھی نہیں کیا گیا ہے۔ حیدرآباد کے اندر بڑی شدید گرمی ہے اور لوگ مشروبات کا استعمال کر رہے ہیں۔ گرمی ہے بہت، اور یہاں بیٹھ گیا ہوں، گرمی کی چھائے کا دھوپ ہے بہت۔ رکشا چلا رہے ہیں، گرمی ہے اوپر سے، ابھی آ رہے ہیں، جیسے آ رہے تھے دیکھا لیمو پانی والا تھا، اس لیے بیٹھ کے پانی پی رہے ہیں۔ شہریوں کا مزید کہنا تھا کہ ایک طرف کرونا وائرس سے بچاؤ و حفاظتی اقدامات کیے جا رہے ہیں تو دوسری طرف گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے بھی کوئی خاطر خواہ انتظام کیے جائیں، جس سے لوگ سورج کی تپش اور گرمی سے بچ سکیں۔ کیمرامین اشتیاق حسین کے ساتھ جہاں زیب علی، بیورو چیف، سچ نیوز، حیدرآباد۔ کمالیہ میں گرمی کی شدت میں اضافہ ہوتے ہی شہریوں نے ٹھنڈے مشروبات کے سٹالز کا رخ کر لیا ہے۔ اسد راجپوت رپورٹ کر رہے ہیں۔ کمالیہ میں پارہ بڑھتے ہی شہریوں کی بڑی تعداد نے مشروب کے سٹالز کا رخ کر لیا۔ گرمی کی شدت میں کمی لانے کے لیے شہری خالص باداموں کی سردائی پینے میں مشغول ہیں۔ بادام کا یہ گرمی کا اکثری علاج ہے، خشک ساب جس کا مزاج ہے، بہت زیادہ اس سے فائدہ ہو۔ گرمی کے موسم میں یہ بہت زیادہ مشہور ہے۔ بادام کا گھوٹا ہے، بادام، چینی، لاچی، کالی مرچ، زیرہ، جامع شیری، کسکاس، ٹھنڈا ہے۔ لوگ بڑی اچھی طرح کے پیندے نے، گرمی کا لاجواب تحفہ ہے۔ گرمی کا دشمن شربت، سردائی، خشخاش، سونف، الائچی، بادام، چار مغز، جیرہ، چینی اور جامع شیری کو ملا کر تیار کیا جاتا ہے، جو کہ نہ صرف گرمی کا توڑ ہے بلکہ معدہ، جگر اور جسم کی بڑھتی ہوئی حرارت کو بھی کنٹرول کرتا ہے۔ گرمی کی شدت میں اضافہ ہوتا ہی بڑی تعداد میں شہری خالص سردائی پینے کے لیے سٹالز پر پہنچ چکے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جتنی زیادہ گرمی پڑ رہی ہے اس کا توڑ خالص باداموں کی سردائی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ اسد راجپوت، سچ ٹی وی، کمالیہ۔ ملک بھر کی طرح ٹھل شہر میں گرمی کی شدت میں اضافہ ہو چکا ہے۔ پرندے تک بلبلا اٹھے ہیں۔ شہر کا درجہ حرارت 48 ڈگری ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ ملک بھر کی طرح ٹھل شہر میں بھی گرمی کی شدت میں اضافہ، پرندے تک بلبلا اٹھے۔ محکمہ موسمیات نے آج شہر کا درجہ حرارت 48 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا ہے۔ گرمی سے ستائے شہری ٹھل کے علاقہ میرپور میں بنائے گئے نجی واٹر پارک پر نہانے پہنچ گئے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ گرمی کی شدت کے باعث گھروں سے نکلنا مشکل ہو گیا ہے۔ دوسری جانب شدید گرمی سے تنگ شہریوں نے واٹر پارک پر ڈیرے ڈال دیے ہیں۔ گرمی سفوکیشن ہے اور لاک ڈاؤن کا ماحول ہے، تو یہ یاسر پارک جو ہے، واٹر پارک جو ہے، تو یہاں پر بچوں کو لائیں انٹرٹین کرنے کے لیے۔ ابھی بچے نہا رہے ہیں تو اسی لیے ہم سب آ رہے ہیں۔ بہت زیادہ گرمی ہے۔ اس یاسر واٹر پارک پہ ہم آئے ہیں اس لیے کہ گھروں میں بہت زیادہ گرمی ہے، اس ادھر واٹر پارک پہ ہم نہانے آئے ہیں۔ ابھی جو انٹرٹین کریں گے، ہم بہت انجوائے کریں گے اس واٹر پارک پہ۔ نوجوان، منچلے اور بچے بھی واٹر پارک میں نہا کر گرمی کی شدت کو کم کرتے رہے اور خوب ہلا گلا کرتے رہے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ عید کے دن گھروں میں گزارے ہیں، اس لیے آج یہاں آئے ہیں۔ گرمی کی شدت دور ہوتی ہے اور ٹھنڈک بھی محسوس ہوتی ہے۔ ٹھل مبارکپور، میرپور سے آئے بچوں اور بڑوں نے بھی گرمی کی شدت کو کم کرنے کے لیے پارک کا رخ کیا اور خوب ڈبکیاں لگائیں۔ محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کی ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں تک بارش کا امکان نہیں، جبکہ آئندہ جمعہ تک بھی شہر کا موسم مزید خشک اور گرم رہے گا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ حامد علی گولو، سچ نیوز، ٹھل۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں گرمی عروج پر ہے۔ سورج کی شدید تپش شہریوں کو ہلکان کر رہی ہے۔ اندرون سندھ میں آج بھی پارہ 49 کو چھو رہا ہے۔ وادی جنت نذیر میں بھی گرمی کی شدت برقرار رہے گی۔ موسم عوام کا امتحان لینے لگا۔ ملک بھر میں گرمی اپنے جوبن پر۔ اندرون سندھ سورج سے آگ کی برسات، پارہ 50 مکمل کر چکا۔ ملک کے وسطی اور جنوبی علاقوں میں گرمی ہی گرمی کا راج برقرار ہے۔
सूरज ने अंदरूनी सिंध के इलाकों को अपने खुसूसी निशाने पर ले रखा है। सुबह से ही सूरज से आग की बरसात जारी है। कराची में पारा 48 के दरमियान रहेगा। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी शदीद गर्मी है। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में दर्जा हरारत 44 तक जाएगा। फैसलाबाद, मुल्तान, रावलपिंडी, टीजी खान और बखर में गर्मी जोरों पर रहेगी। बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में भी शदीद गर्मी ने शहरियों को बेहाल कर दिया है। मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि कश्मीर, जनूबी पंजाब, बलाई खैबर पख्तूनख्वा और शुमाल मशरिक बलोचिस्तान में गर्द आलूद हवाएं चलने के अलावा बाज़ इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान है। मकबूजा कश्मीर में भी गर्मी की शिद्दत बरकरार है। जम्मू में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 42 और श्रीनगर में 21 डिग्री रहेगा। ताहम अनंतनाग, बारामूला में भी कल बादल बरसने की पेशगोई की गई है। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके हजारा का जिला एबटाबाद खूबसूरती में अपना सानी नहीं रखता। सयाहती मकामात और पहाड़ी चोटियां इस इलाके के हुस्न को चार चांद लगा देती हैं। खुसूसी रिपोर्ट करेंगे खाबर अली। एबटाबाद मशरकी खैबर पख्तूनख्वा के इलाके हजारा का एक खूबसूरत जिला और मशहूर शहर है। ये शहर पेशावर की मशरकी जानब 150 किलोमीटर और इस्लामाबाद की शमाल जानब 120 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। ये शहर सतह समुंदर से 4134 किलोमीटर की बुलंदी पर वाक़या है। एबटाबाद की आबादी तकरीबन 2,18,497 अफराद पर मुश्तमिल है। ये शहर अपने खुशगवार मौसम और अंताई आला म्यारी तलीमी मराकज और पाकिस्तान आर्मी के अफसरान के ट्रेनिंग सेंटर और पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल की वजह से अंदरूनी पाकिस्तान में मशहूर है। एबटाबाद का पहाड़ी इलाका शुरू से ही सैयों की तवज्जो का मरकज रहा है। मेजर जेम्स एबट ने जनवरी 1853 में रखा था और इसको हजारा के इलाके का हेडक्वार्टर बना दिया गया था। मेजर एबट जेम्स बरतानिया वापस जाने लगा तो इसने एबटाबाद पर एक नज़म लिखी जिसमें वो अपने शहर की तारीफ करता है और इस शहर को छोड़ जाने का दुख बयान करता है। गर्मी की शिद्दत को कम करने वाला कुदरत का अनमोल तोहफा फालसा छोटे काश्तकारों के लिए मुनाफा बख्श फल है जिसको खाने के लिए शहरियों को साल भर इंतजार रहता है। फालसा खाने में जितना मजेदार है अफादियत इससे भी कई गुना ज्यादा है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक फालसे का इस्तेमाल जिगर और मैदे के लिए इंतहाई मुफीद है। फालसे का जूस जिगर को ताकत देने के साथ साथ गर्मी की शिद्दत को भी कम करता है। फालसा मुनाफा बख्श फसल है जिसको हम खुद काश्त करते हैं क्योंकि इसका मुनाफा भी है। हम खुद भी शौक से खाते हैं। हर साल ये 2 महीने के लिए आता है। शहरियों का कहना है कि गर्मी की सौगात ठंडे मीठे फल। इलाकाई खबरनामे से अब तक के लिए इतना ही। मजीद तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sach.tv.pk। देखते रहिए सच।